Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 13. In this lecture we will discuss inverse, converse and contrapositive of the implication. If P and Q are two propositions such that P implies Q, then negation P implies negation Q is called the inverse of this implication. अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशंस है P एंड Q सच दैट P implies Q एग्जिस्ट कर रहा है, देन negation P and negation Q is called its inverse. हमारे पास दो प्रोपोजिशन P एंड Q है, इम्प्लीकेशन P से Q पे है. इफ P देन Q. अगर हम इस P का नेगेशन ले ले, उलट ले ले, और Q का नेगेशन ले ले, उलट ले ले, तो नेगेशन P से नेगेशन Q पे जो इम्प्लीकेशन बनता है इसे इस P implies Q का इनवर्स कहते हैं. If P and Q are two propositions such that P implies Q, then negation P negation Q implication is called its inverse. For example, if we have a proposition P, A is a circle is P proposition, then today is Sunday, this is the Q proposition. So P implies Q एक proposition बन गया. ये if वाला पार्ट है, ये then वाला पार्ट है. if वाले पार्ट को हम हाइपोथेसिस आज प्रेमिसेस कहते हैं, then वाले पार्ट को हम कंक्लूजन कहते हैं. इफ ए इज अ सर्कल, अगर ए हमारे पास सर्कल है, सर्कल का नाम है. इफ ए इज अ सर्कल, अगर ए हमारे पास सर्कल है, ये प्रोपोजिशन पी हो गया. देन मीन्स इम्प्लीकेशन टुडे इज संडे, ये हमारे पास क्यों प्रोपोजिशन हो गया. सो P implies क्यों, ये प्रोपोजिशन बन गया. If A is a circle, then today is Sunday. This is the implication P implies क्यों. Now the negation of the P proposition will be if A is not a circle. Similarly, the negation of the Q proposition will be today is not Sunday. हम P proposition का negation लेते हैं. If A is not a circle, then today is not Sunday. If A is not a circle, ये negation P हो गया, then implication हो गया. और today is not Sunday, ये negation क्यों हो गया, तो हमारे पास implication बन गया negation P implies negation Q. So this is the inverse of the proposition P implies Q. याद कर ले कि इनवर्स में सिर्फ प्रोपोजिशन के पहले नेगेशन साइन लिख देंगे. सिर्फ नेगेशन साइन लिख दे दोनों प्रोपोजिशन से पहले, तो ये उसका इनवर्स बन जाएगा. Now the converse. If P and Q are two propositions such that P implies Q, अगर हमारे पास इसी तरह एक प्रोपोजिशन है P implication Q, then Q implies P is called its inverse. अब गौर कर ले, यहाँ पहले P है, implication के बाद Q है. हमने ऐसा किया कि Q को P की जगह लाया और P ट्रांसफर किया Q की लोकेशन पे.
then क्यों P is called its converse. P implies Q implies P. So Q implies P is the converse of P implies Q. For example, if 3 plus 4 is equal to 7, ये हमारे पास एक proposition है P. Then implication sign, today is a Sunday. अगर 3 plus 4 7 के बराबर है, then today is Sunday. ये हमारे पास P implies के implication है. अगर हम ये today is Sunday पहले लिख दे F पार्ट में और 3 plus 4 equal to 7 बाद में लिख दे तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा if today is a Sunday, if today is a Sunday, तो ये implication क्यों हो गया? Then means implication sign 3 plus 4 equal to 7, ये P हो गया. तो हमारे पास स्टेटमेंट बन गया एक implication क्यों implies P. कन्वर्स में सिर्फ आप क्यों पहले लाएंगे और P को implication साइन के बाद एरो के बाद लिखेंगे, जिस तरह एग्जांपल में किया. इसके अलावा कंट्रापोजिटिव, if P implies क्यों exist, इसी तरह P implies क्यों एक प्रोपोजिशन है, then कंडीशनल प्रोपोजिशन है, then negation क्यों, negation P is called contrapositive. negation P, negation क्यों, negation P is called contrapositive. इसको याद करने का तरीका सीख ले. contrapositive को P implies क्यों प्रोपोजिशन है, आप पहले क्यों लाए P की जगह, P बाद में, फिर नेगेशन साइन लगा दे. देख ले आप, ये हमारे पास P प्रोपोजिशन है, ये क्यों है, क्यों को हमने पहले लाया, P को बाद में एरो के बाद ले गया. अब नेगेशन साइन लगा दिया क्यों से पहले और P से पहले, तो ये कंट्रापोजिटिव बन गया. आप एग्जांपल देख लें. if the sun is shining today, हमारे पास एक implication है if the sun is shining, only if the sun is shining, then Tifa entered the class. Tifa एक नाम दिया मैंने. if the sun is shining, the sun is shining ये हमारे पास प्रोपोजिशन P है, then means implication arrow Tifa enter the class, ये हमारे पास प्रोपोजिशन क्यों है. the sun is shining P, then implication Tifa enter the class, ये प्रोपोजिशन क्यों है. so P implies क्यों बन गया. अब हम इसका कंट्रापोजिटिव लेते हैं, तो एक काम हमें ये करना होगा कि इसमें नेगेशन लगा देंगे. द सन इज शाइनिंग, इसका नेगेशन होगा द सन इज नॉट शाइनिंग. द सन इज शाइनिंग P प्रोपोजिशन है, इसका नेगेशन होगा द सन इज नॉट शाइनिंग. यानी अगर P हमारे पास प्रोपोजिशन है द सन इज शाइनिंग, सो इसका नेगेशन होगा द सन इज नॉट शाइनिंग, सिर्फ नॉट लगा देंगे. सिमिलरली Tifa एंटर द क्लास, Tifa एंटर द क्लास ये क्यों प्रोपोजिशन है, इसका नेगेशन क्या होगा. Tifa डज नॉट एंटर द क्लास और Tifa नॉट एंटर द क्लास, सिर्फ नॉट लगा, डज नॉट में लगा दिया. if the sun is shining then Tifa enter the class, अब इसका कंट्रापोजिटिव देख ले. if Tifa does not enter the class, then the sun is not shining today. if Tifa not enter the class,
टीफा नॉट एंटर द क्लास, ये नेगेशन क्यों हो गया? देन एप्लीकेशन साइन है, द सन इज नॉट शाइनिंग टुडे, ये नेगेशन पी हो गया। सो हमारे पास नेगेशन क्यों, इस तरह इम्प्लीकेशन, नेगेशन क्यों एम्प्लाइज नेगेशन पी बन गया, तो ये हमारे पास कंट्रापोजिटिव है पी एम्प्लाइज क्यों का। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि इनवर्स, कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव हम किस तरह लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।